चनाया टेस्ट दे दिया तुमने, एमसीक्यू वाला? नहीं, क्लास के बाद दूंगी। अच्छा। और प्री बोर्ड का रिजल्ट आ गया फिजिक्स का? नहीं, अब तो स्कूल नहीं जा रहा कोई भी। तो रिजल्ट तो पता करना चाहिए तुम्हें। स्कूल ही नहीं बुला रहे क्या। लास्ट टाइम मैंने ये रिवीजन कराया था ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड ईएमआई कर रहे थे हम लोग। हमने बाय सेवर्ट लॉ किया था, स्ट्रेट वायर वाले क्वेश्चन किए थे। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेट वायर द फॉर्मूला वाज B is equal to mu naught I over 2 pi r. If you have a finitely long wire, then at a distance r from it, the field was mu naught I by 4 pi r cos theta 1 plus cos theta 2. Okay. Now, magnetic field due to a current carrying loop. तो अगर सपोज इसका डेरिवेशन भी आएगा, और इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है. So if you have a magnet, current carrying loop which carries current I in anti-clockwise direction when seen from this side, ठीक है? The radius is r, distance on the axis जहाँ पे मैं field निकालना है वो x है. There's a point P where you want to find the field. You take element over here, you take another element dl over here, and then magnetic field is perpendicular to the plane containing dl and r. ये distance जाएगा r square plus x square the root. This is also r square plus x square the root. हमने इनफैक्ट रेडियस a लिया था, डिस्टेंस फिर r स्क्वायर से कर दिया था. This was a square. So magnetic field is perpendicular to it, dB like this, dB like this. फिर हमने उसको रिजॉल्व किया था, फिर रिमेम्बर ये एंगल थीटा है. एक एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाला था हमने, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाय आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये एंगल 90 डिग्री क्यों था? The angle is 90 degree because if this is a current carrying loop and this is the element dl and this is r, तो ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा. दैट इज व्हाट वाज 90 डिग्री. थीटा, दिस इज 90 माइनस, ये थीटा हो जाएगा. फिर डीबी के कंपोनेंट लिए थे और फिर हमने डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट किया था, बिकॉज डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल completely. So for integration of dB sin theta uses field at a point on the axis of the circular loop, and the result was this: mu naught by 4 pi to, if number of turns are n, n I a. A is area of the coil, x square plus a square to the power 3 by 2, where a is the area of the circular loop. NIA is also called magnetic moment. NIA, magnetic moment.
N is number of turns, I is current, A is area, so it will be ampere meter square. इसका यूनिट होता है. And direction of magnetic moment will be the same as direction of the magnetic field. For example, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, फील्ड इनसाइड क्या होगा? फील्ड इनसाइड वुड बी ऑलवेज लाइक एज इफ देयर इज अ नॉर्थ पोल. डॉट बनेगा, इट विल बी आउटवर्ड. द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी आउटवर्ड. तो जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, द फील्ड इनसाइड द लूप इज आउटवर्ड. अगर आउटसाइड की बात करोगे तो क्रॉस आएगा. हमें आउटसाइड से मतलब नहीं है. द फील्ड इनसाइड द लूप इज आउटवर्ड. तो लिव इन नॉर्थ पोल. एंड मैग्नेटिक मोमेंट विल ऑल्सो बी द सेम. मतलब अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल करें, then thumb would give you direction of magnetic moment. The magnetic moment has the same direction as the magnetic field. और in case the current is clockwise, फिर क्या होगा? क्लॉकवाइज करंट में साउथ पोल प्रोड्यूस होता है. एस बनाओ, एस के एंड में एरो लगा दो, एरो को बाहर शिफ्ट कर दो. साउथ पोल मतलब क्रॉस. Why? Because if you look at the bar magnet, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर आती है, साउथ पोल से दे अपीयर टू एंटर. Field lines are not in part, they don't get cut, they are continuous loops, closed loops like this. तो नॉर्थ पोल से बाहर आ रही है और साउथ पोल में एंटर कर रही है, तो इसलिए साउथ पोल को मतलब क्रॉस से शो करते हैं. The field, magnetic field lines are closed loops like this. So they appear to come from north and enter into south. तो साउथ पोल को हम क्रॉस से शो करते हैं. So magnetic moment has the same direction as that of the direction of magnetic field. Unit is ampere meter square. And this is the formula for B. ये B का formula था. अगर हम एक situation देखें that the point is very very far away from the loop, x is very large compared to the radius of the circular loop, फिर इस केस में you can neglect a square. So B would be mu naught by 4 pi 2 n I a by x cube हो जाता है. एन आई ए को तुम मैग्नेटिक मोमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, दिस वुड बी 2m बाय x क्यूब हो जाएगा ये. देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, फिर क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ द लूप x वुड बी 0. सेंटर पे फील्ड 0 हो जाएगा, तो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज म्यू नॉट बाय 4 पाई, x को 0 डाल दिया मैंने, 2 n i a, को मैं लिख रहा हूँ पाई a स्क्वायर अगेन. x को 0 सब्स्टिट्यूट किया इस वाले में, तो ये हो जाएगा a क्यूब. ए स्क्वायर से ए क्यूब कट जाएगा, एक पाई कट जाएगा, 2 से 4 काट दिया मैंने, तो आंसर इज म्यू नॉट आई एन आई बाय 2a. सर्कुलर लूप के सेंटर पे फील्ड इज म्यू नॉट आई बाय 2a. A is the radius of the circular loop. So this derivation could be there and then numerical based on. कई सारे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं. अगर सर्कुलर लूप नहीं है, सेमी सर्कुलर लूप है, तो क्या होगा? सेमी सर्कल के सेंटर पे magnetic field would be just half of what it is for the entire loop. mu naught by mu naught I by 4a. याद करने का तरीका है, स्ट्रेट लाइन में पाई आएगा, स्ट्रेट लाइन से a डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r. सर्कुलर लूप में पाई नहीं आता है. What if you have an arc? Suppose you have an arc of radius a which is subtending an angle
theta at the center, then the field would be mu naught I by 2a इंटू थीटा बाई 360, लेकिन यहाँ पे थीटा किस में है, डिग्री में होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री. So that will be the magnetic field at the center of a circular loop. तो क्वेश्चन कर देते हैं. और अगर से कैसी तैयारी हो रही है? ठीक हो रही है सर। आरव, हाँ जी सर, अच्छी चल रही है। कितने घंटे पढ़े हो तुम आजकल? मैं तो वैसे 15 घंटे काउंट नहीं पढ़ी. किया सर, कितने? काउंट नहीं किया मैंने सर अभी तक। काउंट करो भाई, टाइम मैनेज करो. 12-15 घंटे, 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा पर डे, हम्म। तब जाके बात बनेगी. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 12 असाइनमेंट का. 8, 9, 10, 12. टेस्ट कब दोगे वो वाला, एमसीक्यू वाला? आज सबमिट कर दो, देखिए घंटे के तो है. और मॉक टेस्ट कब दोगे? सर मॉक टेस्ट में क्या क्या होगा? फुल फुल सिलेबस, अच्छा। 3 घंटे का. कितने मॉक टेस्ट हैं? जितना देना चाहो, मेरे पास तो बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं. कम से कम कुछ। तीन, 3-4 तो दे दो. सो वी हैव 1 वीक गैप, तो आई वाज थिंकिंग उसमें हम 3-4 दे देंगे। कब? और एग्जाम के पहले? हाँ जी सर, लाइक वी हैव वीक बिफोर द एग्जाम। अरे यार, उसमें फायदा नहीं होता, वो तो बहुत डिले हो जाता है. कुछ 2 टेस्ट तो कम से कम तुम्हें अभी देने चाहिए. अभी एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं तुम्हारे? सर 13th, नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे कौन से? इंग्लिश। अच्छा, मेरे ख्याल से 8 के पहले कम से कम एक मॉक टेस्ट तो दे दो. ठीक है सर। या ऑनलाइन ही दे दो, मैं शेयर कर दूंगा टेस्ट. ठीक है सर। क्योंकि वो तो एंड में तो बहुत डिले हो जाता है फिर, नहीं सर, अंडरस्टैंड, आप सही कह रहे हो, है ना. बहुत डिले हो जाएगा वो। एक कम से कम अभी दे दो. ठीक है सर। अगर ऑफलाइन देना ऑफलाइन देना, ऑनलाइन देना ऑनलाइन शेयर कर दो, ठीक है. ऑलराइट सर। क्वेश्चन 8 करो पहले. Two identical circular coils, each of this radius, are arranged concentrically with their plane perpendicular to one another. ठीक है. दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर 2. दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. दोनों के सेंटर पे फील्ड निकाल लो. डायरेक्शन बताओ मुझे, और मैं इसको ऐसा करता हूँ. I'll
write it x axis. This I write as y axis. This is O. तो पहले लूप में करंट का मैं इससे डायग्राम से एक्चुअली पता नहीं लग पा रहा है कि वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, पता लग पा रहा है तुम्हें? इसमें तो ठीक है। इसको हम क्या लें? इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड, shall I take it clockwise? कौन सा एक्स? नहीं, जो कॉइल नंबर 1 है, कॉइल वन में अगर अच्छा, मैं यहाँ से देखता हूँ राइट साइड से, तो डायरेक्शन करंट क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ, ठीक है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो अगर अगर तुम किसी लूप को देखते हो सो दैट द करंट इज क्लॉकवाइज, तो फील्ड किधर होता है हमेशा? फील्ड विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम यू, मतलब क्रॉस बनेगा, याद रख लेना। किसी लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स फील्ड इज इनवर्ड। और किसी सर्कुलर लूप को तुमने देखा उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो फील्ड वुड बी आउटवर्ड। ऐसे याद कर लेना, नॉर्थ बनता है। तो लूप 1 में अगर यहां से देखने पे, राइट साइड से देखने में क्लॉकवाइज करंट है, फील्ड वुड बी इनवर्ड, मतलब ये डायरेक्शन B1 की हो गई। ठीक है। इस वाले को देखो, इसमें करंट ऐसे है। अगर तुम ऊपर से देखोगे, द करंट इज लाइक दिस, तो फील्ड किधर होना चाहिए? ऊपर से देखने पे इट्स लाइक दिस। इफ यू व्यू इट फ्रॉम हियर, तो करंट कैसे नजर आ रही है तुम्हें? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? द करंट इज लाइक दिस। देखो ऊपर से अगर देखते हो इस लूप को, द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज फील्ड इज टुवर्ड्स यू, इसका फील्ड तुम्हारी तरफ हो जाएगा। ऐसे ले लो, B2, B1 B2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? इक्वल है। मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल। वैल्यूज हम एंड में डाल देंगे, 2πr। तो जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे होंगे, तो रिजल्टेंट कितना होगा? द रिजल्टेंट वुड बी √2 रूट टाइम्स टू ईच, है ना? तो √2 टाइम्स ईच हो जाएगा बस। तो वैल्यू डाल दो, एंड द इट विल बी लाइक दिस। ये इसका नेट होगा, बी की डायरेक्शन एट 45 डिग्रीज। ठीक है। अब नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड गेट द आंसर। जब भी किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट है, फील्ड इज अवे फ्रॉम, इनवर्ड फील्ड होगा। एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड होगा। तो दैट मीन्स बिटवीन 13 टू 13 के बाद तुम क्लासेस नहीं कर पाओगे ना फिर तो। हाँ जी सर। फिर ऐसा कर लेंगे, फिर कब तुम्हारा फिजिक्स के पहले कब एग्जाम है? So sir, our math is on 9th and then our physics is on 16th. 9 और 16 के बीच में यू आर फ्री। Yes sir. So तो like exactly एक हफ्ता है. Like 9th ठीक is a Monday and 16th is ठीक है, also ठीक Monday. है, तब कर लेंगे। बाकी CBSE वालों की तो मेरे ख्याल से इनका 20 को है, इनके लिए तो अभी क्लासेस, और अभी प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं पिछले होंगे। राइट, ये तो हो गया ना, वैल्यू तुम डाल लोगे। नेक्स्ट Yes क्वेश्चन sir. चलिए, 9।
Two parallel coaxial circular coils of radius r and equal number of turns carry current I in the same direction, separated by distance 2r. Find the magnitude and direction of magnetic field. Midpoint of line. Okay. इस बार सिचुएशन ऐसी है. This is radius r. This is radius r. And this is point से O. ये भी r है, ये भी r है. Separation between them is 2r. मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ से राइट साइड से देख रहे हैं तो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. दोनों का फील्ड हमारी तरफ होगा. इसका फील्ड भी इधर होगा, इसका फील्ड भी इधर होगा. ठीक है. तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा. इफ आई अज्यूम दैट व्हेन आई सी इट फ्रॉम दिस साइड द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड वुड बी टुवर्ड्स मी. तो इसको लूप नंबर 1 ले लो, इसको लूप नंबर 2 ले लो. इसका फील्ड B1 इधर होगा, इसका भी फील्ड यहाँ पे B2 टुवर्ड्स राइट होगा. दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे. दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो. फॉर्मूला तुम्हारे पास है. फॉर्मूला इज μ0/4 पाई. दोनों के डायरेक्शन सेम हो तो ऐड हो जाएंगे. 2n1 हो जाएगा. I πr² ले लेना. x विल बी कैपिटल R. a तो R है ही से. कर लो सॉल्व. Both will have same magnitude and same direction. टू टाइम्स हो जाएगा. n is 1, I is pi a square by r square. This is r square. This is also r square to the power 3/2. μ/4 पाई. 4 पाई से 4 काटने का मतलब नहीं, ये तो 10⁻7 हो ही जाए. This is 2i pi r square. This is 2r square to the power 3/2. टू की पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3/2 का मतलब हुआ 2 की पावर 3 की पावर हाफ. 8 to the power half, which is 2√2. This is 2√2. R square के बाद 3/2 would be R cube. R square से R कट जाएगा. And then you can substitute values and get your answer. Assuming that the current is anticlockwise, when seen from the right side, field would be towards us, but there's no need to write that. सिर्फ मैग्नीट्यूड बिकॉज डायरेक्शन पूछा भी नहीं है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन 10 कर लो. कोई डाउट तो नहीं है इसमें शनाया? नहीं. ठीक है, क्वेश्चन 10 करो.
इस बार two coils are like this. They carry equal current, same radius, but the axes are mutually perpendicular like that. यहाँ पे फील्ड निकालना है, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है. Assuming when seen from the right, current is anti-clockwise. इसका फील्ड इधर हो जाएगा, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, इसका फील्ड ऐसे हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज बोथ विल बी इक्वल. फिर दोनों 90 डिग्री पे हैं और फिर उनका रिजल्टेंट निकल आएगा. So mu naught by 4 pi, this would be 2n is 1 I pi r square area हो गया by x square plus r square to the power 3 by 2, and the b net will be root 2 times b1 or root 2 times b2, and the resultant would be at 45 degree because b1 b2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है. Answer this. This is a square of side B. This is a circular loop of radius A. It carries current I. Question is find magnetic field at the center of the loop. In the given diagram, find magnetic field at the center of the loop. सोचो. Field at the center of the loop. क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना. 1 का निकालो, 2 का निकालो और 3 का निकालो. तीनों का ओपन निकाल के फिर तीनों को डायरेक्शन देख के ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना. 1 is arc of the circle, 3/4 of the circle है ना. B 2 and 3 are basically finitely long wires. उस वाले फॉर्मूले से आएगा. कर लो 5 minutes.
फर्स्ट पार्ट का कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? 270 डिग्री। तो ये तो स्क्वायर है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। 270/360। करंट किधर है? करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, विल बी डॉट। B1 आ गया। T म्यू नॉट आई बाय 8 पाई A डॉट। दिस इज B1। देखो, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर पार्ट ऑफ द लूप 3/4 हो गया ये। Then this part of the wire will not produce any magnetic field at point of, because ये इसी के एक्सिस पे लाई कर रहा है। This part of the wire will also not produce any magnetic field। कोई भी वायर अपने एक्सिस पे या अपने ऊपर कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे इसमें अगर करंट आई है तो इसका इसी के ऊपर फील्ड जीरो होता है। थिन वायर की हम बात कर रहे हैं। अब वायर नंबर 2 की वजह से निकालो। वायर नंबर 2 का डिस्टेंस कितना है ओ से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज b बिकॉज स्क्वायर ऑफ साइड b। इसको यहाँ पे ज्वाइन करो। ये एंगल कितना है? 45। और ये एंगल कितना है? 90। तो वो cos थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा इस बार। सो B2 will be म्यू नॉट I by 4 पाई B cos θ1, थीटा 90 डिग्री, प्लस cos θ2, ये 45 डिग्री। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। और इसका तुम उससे निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल से, कि होल्ड द वायर बाय राइट हैंड। इधर फिंगर्स अंदर जाएंगी और इस साइड में फिंगर बाहर आएंगे, इसका भी डॉट होगा। सो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई B cos 90 जीरो हो गया, cos 45 1/√2 हो गया। इनफैक्ट B3 का भी उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा और उसका भी आउटवर्ड होगा। किसी भी लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो लूप के अंदर हर जगह फील्ड आउटवर्ड होता है। इस पूरे लूप में current is anti-clockwise, field would be outward. So B3 would be the same. B2 and B3 का magnitude same आएगा। 4√2 पाई B। फिर दोनों को ऐड कर दो, 1 and 2 को। तो B net will be B1 plus B2 plus B3, and that's your answer। This is 2 times. So this is the final answer। कुछ टर्म कॉमन ले सकते हो, and direction is dot। It is outward, perpendicular to the surface। क्या? अच्छा, सर्कुलर लूप में हमने थोड़ी गलती कर दी। मैंने इससे पाई नहीं आएगा, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सर्कुलर लूप में पाई नहीं आता है। ये क्या कॉमन आ रहा है? म्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन ले सकते हो। ये भी नहीं आएगा, 4 का आएगा। 3/2 प्लस 2a प्लस दिस इज √2 पाई B डॉट। So this is the field at the center of the loop।
Suppose we have a circular loop and there is wire connected like this at point A and B, such that this angle is theta. Question is find magnetic field at the center of the loop. Radius of the loop A ले लेना. एक सर्कुलर लूप है, रेडियस ए, उसके 2 पॉइंट पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी. ये एंगल थीटा है. सेंटर ओ पे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. चलो करो अटेम्प्ट. 5 मिनट्स है हमारे पास. करंट विल डिवाइड. किस तरह से करंट डिवाइड होगा तुम्हें मालूम है, कर लो. करंट कैसे डिवाइड होगा? दिस इज करंट आई. कुछ करंट इसमें जा रहा है, सपोज I1 ले लेते हैं, एंड दिस करंट इज I2, and I will be equal to I1 plus I2. इस पोर्शन को ले लो तो 2, एंड इस पोर्शन को ले लो 1. फील्ड बिकॉज ऑफ सर्कुलर आर्क 1 कितना होगा? म्यू नॉट I 1/2 A इंटू थीटा बाई 360. एंड डायरेक्शन, इसमें जो करंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डॉट होगा. B2 कितना होगा फील्ड? म्यू नॉट I2/2A. लेकिन ये वाला एंगल कितना है, यहां से लेके यहाँ का एंगल 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360. एंड दिस वुड बी क्रॉस, बिकॉज इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज है. यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
तो कहने का मतलब दोनों का जो फील्ड है वो ओ पे अगर निकालोगे सब्ट्रैक्ट होगा। तो द प्रॉब्लम है I1 I2 कैसे निकालोगे। करंट गेट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंसेस। अगर दो रेसिस्टर्स हैं R1 एंड R2, इसमें करंट I है वो आ रही है, इसमें मान लो I1 है करंट, इसमें I2 है। तो कैन यू टेल मी I1 कितना होगा, I2 कितना होगा I के टर्म में। करंट I1 इन टर्म्स ऑफ I R1 R2। करंट हमेशा गेट्स डिवाइडेड इन द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रेसिस्टर्स। वैसे चाहे तो हम पैरेलल से इसको कर भी सकते हैं, दे आर इन पैरेलल, सो वोल्टेज इक्वल होगा। देखो I1 R1 इक्वल टू I2 R2, लेकिन I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2। तो तुम I2 को रिप्लेस कर सकते हो, I1 R1 इक्वल टू I माइनस I1 R2। इसको सॉल्व करो, बताओ I1 कितना आ रहा है। पैरेलल में रेसिस्टेंस इक्वल होते हैं, पोटेंशियल सेम होता है, वो यूज किया हमने। तो यहां से I1 आएगा R1 इंटू I इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आएगा। करंट गेट्स डिवाइडेड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रेसिस्टर्स। ये आ रहा है, I1 में करंट R2 के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर तुम I2 निकालोगे तो वो R1 के प्रोपोर्शनल होगा। तो करंट्स गेट्स डिवाइडेड इन द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रेसिस्टर्स। अगर तुम यहाँ पे I1 बाई I2 निकालोगे तो होगा R2 बाई R1। I1 R2 के प्रोपोर्शनल है, I2 R1 के प्रोपोर्शनल है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे यूज होगा, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। इसका रेसिस्टेंस इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और इसका रेसिस्टेंस इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ यू नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो वो इसकी लेंथ L1 है, तो थीटा हो जाएगा L1 बाय ए। ये एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा। तो आर्क ले लो, उसकी लेंथ L2 ले लो, वो ये हो जाएगी। तो हम रेसिस्टेंस, वी नो दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, तो वहां पे रेसिस्टेंस को हम लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं R2 को L2 से रिप्लेस कर देता हूँ, और R1 को L1 से रिप्लेस करता हूँ। देखो क्या आएगा फिर करंट। तो दिस वुड बी I, R2 कितना हो गया, R2 को L2 से रिप्लेस किया, A इंटू 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय R1 प्लस R2 का मतलब L1 प्लस L2 कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ से L1 आएगा A थीटा, L2 आएगा A इंटू 360 माइनस थीटा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो A थीटा कट जाएगा, दिस वुड बी 360 इंटू A, 360 इंटू A। ये आ गया तुम्हारा I1। A से A काट दो। Then you can find I2 also। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए। R1 is L1 which is A theta, and R1 plus R2 is 360 into A। यहाँ भी A से A कट जाएगा, तो बेसिकली आई गेट I1 I2 मेरे को मिल चुका है। I1 आ गया 360 माइनस थीटा इंटू I डिवाइड बाई 360। I2 आ गया थीटा इंटू I डिवाइड बाई 360।
इसको एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। इस I1 I2 को वहां पे रिप्लेस कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर। μ0/2a, I1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, 360 माइनस थीटा I डिवाइड बाय 360 इंटू थीटा बाय 360, एंड इट इज डॉट। यहाँ भी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ I2 को, μ0/2a, I2 is theta I by 360, and this is 360 minus theta by 360 क्रॉस। अब जरा देखो B1 B2 को देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दे आर एग्जैक्टली द सेम, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। दैट मीन्स नेट फील्ड एट O विल बी ऑलवेज जीरो। तो हम किसी सर्कुलर लूप के किसी दो एनी टू पॉइंट्स पे अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें, फील्ड द सेंटर हमेशा जीरो आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसमें लेंथ ज्यादा है उसमें करंट कम हो जाता है, और जिसमें लेंथ कम है उसमें करंट ज्यादा हो जाती है, तो अल्टीमेटली फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द सेंटर रिमेन्स द सेम। So field would be at whatever point you connect the wire from the battery, field would be always zero at the center. क्वेश्चन 18 का दो ये पार्ट कर लो, सेकेंड एंड थर्ड बी एन सी पार्ट। क्वेश्चन 18 का बी एन सी पार्ट करो। सर्कुलर वाला आर्क वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा।
This radius is A and this is B. This angle is say theta. Current is I. इसमें clockwise current है, इसमें anti-clockwise current. This part of the wire will not produce any field. AD part and CB part will not produce field. This is 1, this is 2, B1 B2 दोनों निकाल लो. किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? 2 का ज्यादा होगा ना. 2 का रेडियस कम है तो B होगा B2 minus B1. 2 is anti-clockwise, so it will be dot. So that's your answer for the B part. C part करो. सी पार्ट में 3 डिफरेंट आर्क्स हो जाएंगे ना. 2 सेम रेडियस, 3 डिफरेंट रेडियस हो जाएंगे. थर्टी डिग्री, 30 डिग्री and 30 डिग्री. The current is like this. तो डिवाइड कर लेते हैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में. दिस इज नंबर 1. ये भी 2 है, ये भी 2 है, सेम रेडियस होगा. दिस इज नंबर 3. तो ये बोर्ड्स में आ सकता है? हाँ. सर्कुलर आके तो आएंगे ना. खतरनाक सा लग रहा है देख के. नहीं, वो देख के लग रहा है, इतना है नहीं. ओके. उसको 3 इंडिविजुअल पार्ट में कर लो. सबसे आउटर आउटर को मैंने 1 ले लिया, ठीक है. हाँ जी. उसका निकाल लो फील्ड पहले. एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. रेडियस 5. करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डॉट. तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट. करंट जो भी था रिप्लेस कर देना बाय 2 into 5. थीटा 90 डिग्री बाय 360. एंड सिंस द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज 1 में, तो डॉट आ जाएगा. कट जाएगा 4. म्यू नॉट I बाय 40 डॉट. अब 2 वाला देखो जरा. ये भी 2 है, ये भी 2 है, सेम रेडियस है. 4 - 1 कर दो, और 5 - 1 4 मीटर का रेडियस हो जाएगा. तो म्यू नॉट I इंटू 2a. ए इज 4 मीटर. एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री एंगल हो गया इसका. अब इसमें वो देखो जरा. डायरेक्शन करंट. करंट ऐसे जाएगा. इट विल बी लाइक दिस. तो करंट इज लाइक दिस क्लॉकवाइज. ये क्रॉस आएगा. म्यू नॉट I बाय कितना हो गई? 48. ये क्रॉस आ गई. फिर थर्ड पार्ट में एंगल 30 डिग्री हो गया. म्यू नॉट रेडियस का और 1 मीटर कम हो जाएगा. रेडियस होगा 3. एंगल इज 30. 30 बाय
360, ये भी क्रॉस आएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 72, दिस ऑल्सो क्रॉस। इन दोनों को ऐड कर लो और फिर देख लो कौन सा बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। क्वेश्चन 40 43 ये घर पे कर लेना तुम लोग, नेक्स्ट क्लास के पहले ना। टू एंड थ्री को ऐड करके कितना आ रहा है? तो पूरा ऐड करके 7/720 बन रहा है फ्रैक्शन उसके अंदर। ये दोनों को ऐड करके? इन दोनों को ऐड करके फिर 1/40 सब्सट्रैक्ट करके। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मतलब ये बड़ा आ रहा है ना। हाँ जी। ठीक है, तो नेट डायरेक्शन में भी क्रॉस, बिकॉज क्रॉस वाला बड़ा है फिर। ठीक है, देन आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, विल बी ऑन फ्राइडे, ending the class बाय सर, थैंक यू। of